धन्यवाद आकिब. Thank you. So the match is going to be between these two teams. Swayambhu Paigaon versus Johan Sports. Johan Sports on the toss and they have elected to bat. They have elected to field first and invited here Swayambhu Paigaon for bat. So this is going to be a very important match between these two because both of the team they have won single matches. They have won. But the batsmen are there on the ground and let's see what happens now. The start will be very important. The match will be of 4 overs. On strike, the batsman Nikhil will be on the strike and non-strike there is Tejas. Both the batsmen have always given a good start for the team and let's see what happens is this match, how they are going to bat. So after losing the toss, the Swayambhu Paigaon is going to do a bat and Johan Sports elected to field first. So on this beautiful ground, we can see the galleries, wonderful stands are there, spectators are there, and we have seen the spectators all over enjoying this cricket on their telephones, on their Android phones also. So through the YouTube also we have got a lot of spectators enjoying this beautiful matches. So both the umpires are on the ground. The fielding positions, they have already set the fielding. So the two fielders inside the 30-yard circle. And other fielders we can see that the deep square leg and then mid wicket, deep mid wicket, long on, long off is there, and also you can see on the offside there is deep extra cover, deep cover. So this is what the fielding on this ground, and here we go with the first ball, with the first over, and the bowler, his name is Rafiq, who will be introducing here. The first ball of the match, gentle push. The batsman is going for the second, could be a close. Oh my God, he just fumbled down there, and the batsman meanwhile getting the chance to take couple of runs. That was very quick. He was very quick. Well, the first one they have taken very fast, very quick, and another one just as a ball we have seen that fumbled and got a chance to finish the second run. Rafiq won his bowling mark once again. He just coming and there was a dancing round the wicket, but not able to connect with his bat. The ball just touches the body, and meanwhile the umpire gives it leg byes. So the runs are very important. Anyhow it is coming, but this time we have seen the leg byes. Umpire has given the decision, and they have taken a single. The match is of 4th over. Well, anything can happen. The score is very important, especially in the limited overs matches. We had seen the match Swayambhu Paigaon, who had played against Sayukta Sports, and that was really in the last match, last ball, they bowled really well. One ball was there remaining and 2 runs were required, and the bowler this time middle of the bat, and let's see what happens in the air, and it has dropped. The catch has dropped, and meanwhile the umpire will be giving it 6. So in the previous match, this Swayambhu Paigaon and I think Sayukta Sports, the match was between these two, and I think the last ball was there and 2 runs were required, and the bowler name was okay, they were doing the batting, and the batsman was on the strike, Bhavesh Patil. So that was a boundary. The umpire said it's a boundary. So 7 runs are on the board right now.
7 runs are on the board right now. Oh, that is going, and it is going, and it's going for a wonderful six from his bat. Beautifully connected, middle of the bat. That went for the six. He crosses and that clears the distance and into the stands. What a stroke from him. Tejas, the batsman, who is such a dangerous customer, especially in the power play world. All the fielders, we have stick to the boundary line. Tejas is really a man who has got a power. Left-handed batsman. A lot of potential to hit the big strokes. Once again dancing down the wicket in the air, and he has taken a very, very important wicket, the big fish in the net. Tejas has to go. Well, he was dancing down the wicket, he hit the ball in the air, and meanwhile the fielder doesn't make any mistake. He has taken a beautiful catch, and the man will have to go. He had given a wonderful start for the team, but this time we have seen he will have to go to the pavilion. The new batsman comes to center. His name is Chandan. चंदन आ चुके हैं बल्लेबाजी की यहाँ. Oh, beautiful ball, and beats the batsman, beats the wicket keeper. Umpire said it's byes, and this will be the boundary. So after first over, 17 runs with the loss of 1 wicket. हालांकि ये शुरुआत अच्छी थी. पहले ओवर में 17 रन आ चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि विकेट था तेजस का. तेजस ने 10 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. अच्छी शुरुआत उन्होंने दी थी, हालांकि वो आउट हो चुके हैं. कैच अपना दे बैठे थे लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन 10 रन बनाकर वो आउट हो चुके हैं. लेकिन इस बीच हमने देखा स्वयंभू पाइगांव टीम की शुरुआत बेहतरीन हो चुकी है, जिन्होंने पहले ओवर में 17 रन बनाए हैं. हालांकि ये 4 ओवर की मैच है. इस मैच में जरूर यहां पर जवान स्पोर्ट्स के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखने की कोशिश रहेगी. जिस तरीके से अभी बल्लेबाजी यहां पर हो रही है, बेहतरीन शुरुआत खास तौर पर तेजस ने दी थी. सोनू यहां पर आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए. सोनू से यही अपेक्षा रहेगी. हालांकि विकेट चटकाने होंगे. अगर रनों का औसत यहाँ पर रोकना होगा, रनों का टेम्पो रोकना होगा, तो इस बीच यहाँ विकेट की जरूरत है जवान स्पोर्ट्स को. लेकिन यहाँ हमने देखा कि सूझबूझ बल्लेबाजी यहाँ इन दोनों के बीच, कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते. बल्ले पर गेंद को ले रहे हैं, आसानी से यहाँ पर स्ट्रोक्स खेल रहे हैं. इस बीच अभी गेंद देखिए हल्के हाथों से उन्होंने ढकेल दिया है कवर्स की दिशा में. पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे लेस विकेट. इस बीच अच्छी फील्डिंग की, गेंद को रोका उन्होंने. जैसे ही गेंद हाथ में मिली, फेंक दिया उसको गेंदबाज के पास, तो 1 रन, 1 अवसर मिला, और 1 रन से उन्होंने छोर बदला है. स्ट्राइक पर अभी बल्लेबाज रहेंगे निखिल आ चुके अभी स्ट्राइक पर. ओहो, ये हुक किया है. हवा में गेंद है लेकिन कैरी नहीं हुई है. स्क्वायर लेग पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर उसको खेला. एक टप्पे पे उसको लिया हाथ में, और जैसे ही मिला उसको फेंक दिया. केवल 1 रन मिलेगा और अवसर मिला वहां पर पूरा करने का. 1 रन के साथ स्कोर 19 पर जाकर पहुंचा है स्वयंभू पाइगांव का. सोनू यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं. हालांकि कोशिश यही है सोनू की, कम से कम रन अपने ओवर में खर्च करे, ये कोशिश. ये देखिए फ्लाइट किया था, गति परिवर्तन किया था. हालांकि हाथ स्वीप करने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए. एक अच्छा गति परिवर्तन हमने देखा, विविधता देखी है. इससे पहले कुछ चंग गेंदें उन्होंने तेजी से की. इस बीच एक प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट किया
और स्लोवर वन उन्होंने अटेम्प्ट किया। इस बीच अगली गेंद जगह से खेलना चाहते थे और देखिए गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद तेज कर्रार गेंद थी। हालांकि गेंद आने से पहले ही थोड़ा सा बल्ला घुमा दिया था उन्होंने, नहीं बल्ले पर ले पाए। विकेट कीपर के दस्तानों में सुरक्षित जाकर पहुंची है। कुछ ऐसे ही डॉट गेंदें करनी होगी। हालांकि 17 रन पहले ओवर में उन्होंने दे चुके हैं, तो दूसरा ओवर लगभग यही कोशिश है कि स्कोर जो है एवरेज को है रोक कर रखना होगा। इस बीच अगली गेंद आगे आकर खेला, बल्ले के बीचों बीच लिया, हवा में गेंद कोशिश और ये जरूर अच्छा उन्होंने बाउंड्री लगभग रोका। 2 रन तो लगभग उन्होंने रोके। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर उनके द्वारा हमने देखा। कोशिश थी उनकी कैच लेने की, लेकिन कैरी नहीं हुई गेंद, लेकिन कैच ना भला ले सके, लेकिन उनको उन्होंने गेंद को रोका। बैकफुट पर जाकर हुक किया है खिलाड़ी वहां पर। देखिए ये जाएगी गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी 4 रनों के साथ स्कोर जो है स्वयंभू पाइगांव का होता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 25। बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी की है, खासतौर पर 17 रन आ चुके थे पहले ओवर में। दूसरे ओवर में सोनू ने केवल 8 रन खर्च किए। तो अभी भी यहां से हम देखा जाए तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 2 ओवर में लगभग 15 से 20 रन भी आते हैं तो एक सम्मानजनक टोटल जरूर हम देख सकते हैं। यही कोशिश रहेगी। हालांकि यहां से कंधे खोलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, रिस्क उठा सकते हैं। हालांकि अब तक उनका केवल 1 विकेट गिर चुका है, तो अभी भी उनके पास काफी सारे विकेट्स है। तो अगर यहां से देखा जाए परिस्थितियां बन चुकी है और एक उनके पास एक मौका है, आने वाले 2 ओवर में कम से कम 15-20 भी रन बनते हैं तो एक अच्छा डिफेंडेबल टोटल स्वयंभू पाइगांव का हो सकता है। लेकिन कोशिश यहाँ पर रहेगी जोहान स्पोर्ट्स की कि कम से कम रन दे और ज्यादा से ज्यादा विकेट लेने की कोशिश करेंगे। उमर यहाँ पर आ चुके हैं। उमर को कप्तान ने इस बीच इसी कारण से लाया है। पिछले मैच के हीरो रहे थे जिन्होंने बेहतरीन योगदान दिया था अपने टीम के लिए, तो यही अपेक्षा यहाँ पर कप्तान द्वारा उमर के पास रहेगी, उमर के ओर रहेगी। अगली गेंदबाजी करेंगे उमर। स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज निखिल, नॉन स्ट्राइक के पेन है चंदन। उमर यहां पर गेंदबाजी का तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं। नेहरू की पहली गेंद आगे आकर हवा में गेंद है, लॉन्गो पर खिलाड़ी और एक आसान सा कैच और आउट हो चुके हैं बल्लेबाज निखिल, जो कि आगे आकर खेल चुके थे। हवा में गेंद थी, इतना ताकत नहीं था स्ट्रोक के पीछे और तीर के माफिक हवा में गेंद थी और लॉन्ग ऑफ पर जो कैच पकड़ा, बेहतरीन कैच पकड़ा और यहाँ पर एक बड़ी सफलता जरूर आते ही मिल चुकी है उमर को, जो पिछले मैच के हीरो थे और यही अपेक्षा थी। आते ही देखिए उन्होंने विकेट चटकाया है। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर अभी, जिनका नाम है उमेश, जिनको हम पैर से घोटा भी कहते हैं, जो अच्छी फील्डिंग करते हैं, जिन्होंने अब तक बहुत बेहतरीन कैचेस लिए हैं। इस बीच देखिए और ये शायद बल्ले से स्पर्श करती हुई विकेट कीपर के हाथ में गई थी, लेकिन अच्छी कीपिंग, उन्होंने उस गेंद को रोका, मौका नहीं दिया इस बीच रन लेने का। कुछ ऐसी ही गेंदबाजी की अपेक्षा रहेगी उमर से, लेकिन स्वयंभू पाइगांव के बल्लेबाजों को रिस्क लेना होगा। हालांकि उनके पास अभी भी काफी सारे विकेट है, रन बनाने होंगे और रन बनाने के लिए एक 2-2 रन जरूर लेने की कोशिश करनी होगी। हालांकि डॉट गेंदे जब भी आएगी तो थोड़ा सा प्रेशर तो जरूर बढ़ेगा। ये देखिए आगे आकर खेलना चाहते थे और ये बल्ले पर नहीं ले पाए। काफी सारा फासला था। तेज कर्रार गेंदबाजी करने में माहिर और सटीक गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर उमर द्वारा होता हुआ। डॉट गेंद उन्होंने की है। अभी भी स्कोर रुका हुआ, हमारे स्कोरर बताएंगे। 25 स्कोर हो चुका है। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। उमर द्वारा कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को।
इस बीच देखिए, और ये अंदरूनी सिरा लगा था और ये गेंद सीधी स्टंप से टकराई। आउट हो चुके हैं बल्लेबाज, काफी निराश होकर, जो कि कोशिश कर रहे थे काफी समय से प्रहार करने की। और इस बीच देखा हमने, उमर ने गेंद डाली, ऑफ स्टंप के बाहर थी, जो बल्ले से टकराई, अंदरूनी सिरा लगा और गेंद सीधी जा चुकी, स्टंप पर लगी और आउट हो चुके हैं बल्लेबाज। आउट होने वाले बल्लेबाज जिनका नाम था चंदन, जो कि खास तौर पर कुछ कर नहीं सके अपने टीम के लिए, अच्छा योगदान नहीं था। इस बीच अब आ चुके हैं मैदान पर भावेश, जो कि पिछले मैच में जिन्होंने संयुक्त स्पोर्ट्स के अगेंस्ट में खास तौर पर एक अच्छा योगदान रहा था, 17 रन बनाए थे उन्होंने और एक अच्छा खासा योगदान रहा था। यही अपेक्षा यहाँ पर रहेगी अभी स्वयंभू पायगांव के टीम की। खास तौर पर यहाँ पर 12वीं खिलाड़ी जो है वो चाहते कि हमारी टीम के ज्यादा से ज्यादा रन बने, क्योंकि यहाँ पे सामने वाली टीम वो भी बहुत स्ट्रांग है। इस बीच अगली गेंद उमर द्वारा, देखिए जगह से खेला उन्होंने और ये गेंद सीधी जाएगी लॉन्ग ऑन पर। पहला रन तेजी से दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे, लेकिन हाँ ना में यहां गेंद गई है, फिर से ओवर थ्रो का फायदा मिला। फायदा लेते हुए दोनों बल्लेबाज इस दौरान के साथ स्कोर जो है 27 पर जाकर पहुंचा है। रनों पर ज्यादा ध्यान देना होगा, हालांकि ये जो है अभी भी तीसरा ओवर है। उमर द्वारा कोई खास तौर पर यहाँ पर देखेंगे गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मौका बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। इस हवा में गेंद, टाइमिंग देखिए और कोशिश थी और ये सीधी 6 रनों के लिए। जरूर ये कोशिश करनी चाहिए थी रकीब को, लेकिन रकीब ने क्या छोड़ा। उसके ऊपर से गया, लेकिन गेंद गई थी। वीआईपी डाइस पे गए थे जहां पर रकीब थे, कोशिश करनी चाहिए थी उनको, लेकिन सीधे उनको टकराई कंधे से। अभी महसूस कर रहे हैं कि कितना हार्ड ये गेंद रहती है और बल्लेबाज कितने जोर से स्ट्रोक खेलते हैं, मारते हैं। इस बीच बढ़िया स्ट्रोक खेला मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए और साथ साथ स्कोर जल्दी से यह हो चुका है, तेजी से आगे बढ़ता हुआ 33 हो चुका है। आखिरी ओवर जुनेद आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए, जिनको आखिरी ओवर के लिए लाया गया है। स्ट्राइक पर है उमेश। हुक किया है हवा में गेंद, डिफाइन लेग पर एक टप्पे पे उसको कलेक्ट किया, 1 रन लेने का अवसर मिला, 1 रन उन्होंने पूरा किया। टॉस के लिए एमजे के कप्तान और अंजुमन के कप्तान प्लीज टॉस बॉक्स में आपको आना है। इस इनिंग के बाद हम टॉस लेने जा रहे हैं। एमजे के कप्तान और अंजुमन के कप्तान। आखिरी ओवर प्रगति पथ पर है। विकेट कीपर काफी दूरी से वहां पर आते हुए कुछ मैसेज जरूर दिया होगा उन्होंने। स्ट्राइक पर भावेश है, जिनके पास बड़े स्ट्रोक लगाने की काबिलियत है। देखेंगे इस बीच किस तरीके से इस ओवर में स्ट्रोक्स खेलते हैं। इस बीच देखिए जगह से बैकफुट पर गए, पंच किया, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन तेजी से पूरा किया। दूसरे रन के लिए जब तक यहाँ थ्रो आता नहीं, उन्होंने ये देखिए कुछ भी जरूरत नहीं थी और वो थ्रो किया और ये चौका। 6 रन 5 ओके। अंपायर के पास कोई खिलाड़ी जाएगा नहीं, अंपायर जो है स्वयं अपना पर्सनल डिसीजन लेंगे। छह रन ओके, तो ये लगभग हम देखा जाए तो छक्का ही आ गया। 6 रन और इसी के साथ यहाँ ये स्कोर 40 पर जाकर पहुंचा है।
हालांकि जरूरत नहीं थी उस ओवरथ्रो की, कोई कवर नहीं कर पाया। अंजुमन के कप्तान यहां पर आ चुके हैं इस बीच, और ये देखिए कलायों का इस्तेमाल किया, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिला। अच्छा स्ट्रोक था लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग की है। रफीक द्वारा बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन देखा, जो कि खड़े हैं स्क्वायर लेग की दिशा में। सही जगह पे हो तुम। इस बीच फिर से एक बार हुक करने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर थे, और ये 6 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक। देखिए ऊपरी सिरा लगा था, टाइमिंग लाजवाब था, अचानक से उछली गेंद सीधी हवा में थी और स्टैंड्स में चली गई। बेहतरीन स्ट्रोक उनके बल्ले से आया और इस 6 रनों के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ। (47) स्कोर। वेलकम। Score is on board 47. This time beautiful ball. Just the ball was having a lot of pace, but the batsman was looking for the big hit, but not able to connect with his bat and straight to his body. The score is right now moving on 48 runs are on the board. It's going to be the last. And the ball was in the balloon in the air. The ball goes to straight down to the third man. And again, once again, no! We can see there is once again we have seen extras are coming here. So the score is 51 and the target will be of 52. Swayambhu Paigav has given the target of 52. They batted really well, especially in the middle order, we have seen. So now let's go to have a toss. The toss is going to be between Anjuman Sports versus MJ Sports. Both the captains are in the toss box and it's over to microphone Rakib. Thank you very much संदीप बागुल सर। इस वक्त अंजुमन के कैप्टन मेरे साथ मौजूद है मुन्ना और एमजे स्पोर्ट के कैप्टन अतीक। आइए मैं टॉस बॉक्स में आवाज देना चाहूंगा संयुक्त स्पोर्ट के कैप्टन रुपेश। रुपेश आपको टॉस के लिए आना है प्लीज। रुपेश आपको टॉस के लिए आना है प्लीज। ये देखिए हमारे साथ रुपेश जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुपेश जी आपको टॉस दिखाना है टीमों को। एक तरफ है श्री पूनम चंद जी गुप्ता, दूसरी तरफ है संयुक्त स्पोर्ट। इस वक्त कैप्टन अतीक का कॉल है संयुक्त स्पोर्ट। ये देखिए भी दूर सिक्का उछाला था वहां पर, रुपेश ने आया भी। इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अतीक आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? क्या कारण है कि आप फील्डिंग कर रहे हैं? पिछला मुकाबला बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जीता था। बैटिंग और बॉलिंग दोनों स्ट्रांग है, तो बॉलिंग में हमारे पास 2 और ट्रम्प कार्ड है, तो उसको यूज करेंगे। आपका मुकाबला अब अंजुमन स्पोर्ट्स से है, जो कि बहुत ही अच्छी टीम है। अभी जो पिछला कप खत्म हुआ उसकी रनर अप है, तो क्या इनके सामने कोई अलग रणनीति है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब टीमें इक्वल है, खेलेंगे अच्छा खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एमजे स्पोर्ट के कैप्टन। अब हम जुड़ रहे हैं अंजुमन के कैप्टन मुन्ना से। अगर मुन्ना, क्या आपके लिए टॉस इम्पोर्टेंट था? हाँ। अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग। अब आपको बल्लेबाजी मिली है, तो बल्लेबाजी में कहाँ तक जाना चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। कितने ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहेंगे? जितना ज्यादा बना सके। ये डायलॉग तो आपका काफी मशहूर हो चुका है, अब ज्यादा से ज्यादा। तो कौन से ऐसे बल्लेबाज है जिनसे आपको उम्मीदें होंगी? क्योंकि लेट इफ्तिखार ट्रॉफी में हमने देखा आपकी पूरी टीम पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी के बलबूते पर चली। कहीं ना कहीं मुन्ना का भी उतना सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो क्या अब इस नई ट्रॉफी में कुछ नई रणनीतियां हैं? हाँ। तो कौन से और बल्लेबाज हैं जिनसे अपेक्षा होंगी आपको? सभी बल्लेबाज अच्छे हैं, हमारे बॉलर भी बैट्समैन। ये थे अंजुमन के कैप्टन मुन्ना। थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स
MJ Sport win the toss, elected to bowl first. Back to the commentary box. धन्यवाद. तर या ठिकाणी आपण पाहू शकाल 52 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे. स्वयंभू पायगाव या संघाने प्रथम फलंदाजी करून आता मात्र या ठिकाणी जोहान स्पोर्ट्स या ठिकाणी कशी फलंदाजी करेल हे पाहणं गरजेचं आहे. फलंदाज चला पटापट या मैदानावर. तो आने वाले 2 ओवर के लिए माइक्रोफोन पर आएंगे रकीब अंसारी जो कि हिंदी के बेहतरीन कमेंटेटर है. ओवर टू हिम. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बागुल सर, बहुत ही कमाल की आप आवाज सुन रहे थे. इस वक्त देखने कुल 51 रन बनाने में सफल हुई वहां पर स्वयंभू स्पोर्ट और 52 रनों की चुनौती रखी है इस वक्त जोहान के सामने. इस वक्त स्ट्राइक पर है बल्लेबाज खालिद और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है रफीक. इसी बीच तान दिया वहां पर बल्लेबाज खालिद ने पहले गेंद पर सिक्सर से अपना खाता खोला और गेंद को बहुत दूर दे मारा. बिल्कुल क्वारंटीन कर दिया उस गेंद को. अब वो दोबारा नहीं आने वाली मैदान पर. इस 6 रन की मदद से खाता खुलता हुआ इस वक्त जोहान स्पोर्ट और खालिद का. जी हाँ बिल्कुल, आज जाकिर लाला नजर नहीं आए हैं जोहान स्पोर्ट में. बहुत अच्छी ऑलराउंडर है लेकिन बिल्कुल उनकी कमी महसूस नहीं होने दी है जोहान स्पोर्ट ने. अभी तो उमैर का आना बाकी है जो कि पिछले मैच में 52 रन बनाकर नॉट आउट थे. दोस्तों कहीं भी मत जाइएगा, आज के शाम का आखिरी मुकाबला बहुत ही करारा मैच जहां पर खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है अंजुमन स्पोर्ट और MJ स्पोर्ट, जहां पर 2 भाई दिखेंगे आमने सामने. एक में है अमजद तो दूसरे में अबू शैमा. पहला ओवर लेकर आ रहे हैं वहां पर गेंदबाज समीर. पहली गेंद पर सिक्सर लगा. अगली गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला है वहां पर बल्लेबाज ने. पैरों पर थी गेंद, उसे मोड़ दिया. 1 रन पूरा किया इसी बीच और इस 1 रन की मदद से स्कोर 7 रनों पर पहुंचता हुआ बिना किसी नुकसान के. अब स्ट्राइक पर आए हैं रफीक. इस बार रफीक ने उड़ाया है ये गेंद. हाई एंड हैंडसम. टाटा बाय बाय. 6 रन. बहुत ही खूबसूरत शॉट आता हुआ वहां पर बल्लेबाज रफीक के बल्ले से 6 रनों की मदद से स्कोर 13 रनों पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के. 13 रन विदाउट लॉस. इस वक्त कुल रन बने हैं 13 बिना किसी नुकसान के. देखिए समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज. समय के लिए सहयोग कर रहे हैं दोनों ही टीमें क्योंकि इसके बाद का एक अहम मुकाबला खेला जाना बाकी है. आज के दिन का सबसे रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है. रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी वहां पर जोहान स्पोर्ट और पहले ओवर का खेल चल रहा है और 13 रनों पर पहुंच चुकी है. जो आस्किंग रन रेट था पर ओवर 13 रन वो तो पहली 3 गेंदों में ही हासिल कर लिया है. ये देखिए रिवर्स शॉट और ये गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर. बिल्कुल दंदन आती हुई 4 रन. बहुत ही खूबसूरत शॉट आया वहां पर बल्लेबाज रफीक के बल्ले से. इस 4 रन की मदद से स्कोर है 17 रन 17 रन. ये देखिए इस वक्त देवेंद्र जादव इस मैच का आनंद ले रहे हैं. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर काफी मेहनत और मुशक्कत की है इसे
पर्दा को कामयाब बनाने के लिए, लेकिन काफी नाराज हुए थे जब संयुक्त स्पोर्ट मुकाबला हार गई थी। देखिए इस वक्त एक चाबी मिली है हमें। इसी बीच फिर से रिवर्स शॉट, इस बार गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में। एक रन की मदद से स्कोर है 18 रन, 18 रन्स। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे मोड़ दिया है ऑन साइड में। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर फाइन लेग की दिशा में, केवल एक रन, और इस एक रन की मदद से स्कोर है 19 रन, 19 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहां से जो रन चाहिए, बची हुई 18 गेंदों में 33 रन, तो यहां से जो आस्किंग रन रेट है इस वक्त पूरा 11 रनों का है जोहान स्पोर्ट के लिए। हर ओवर में उन्हें 11 रन बनाने होंगे। इस वक्त एक ओवर के बाद कुल रन बने हैं 19। बिना किसी नुकसान के बहुत ही करारा जवाब पेश किया है वहां पर जोहान स्पोर्ट ने। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज जय। फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया है वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। थोड़ा सा फंबल हुआ था पहले खिलाड़ी से, अच्छा बैकअप और दूसरा रन मुकम्मल। इन दो रनों की मदद से इस वक्त स्कोर है 21 रन, 21 रन। इस बार वहां पर स्लॉग स्वीप करना चाहते थे खालिद, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। बहुत ही खूबसूरत अंपायरिंग हम देख रहे हैं इस पूरे ही टूर्नामेंट में। कमाल की अंपायरिंग की है शानू कुरैशी और परेश महाजन, और साथ ही साथ हमारे अंपायर हसन मोमिन और फारूक बरेडी सर ने। इस बार कट करना चाहते थे, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। और बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट आप तक पहुंचाया अभी तक प्रिंस मूवीज ने। इसी बीच अगली गेंद वहां पर उड़ा दिया है, गेंद हवा में है। ये देखिए वहां पर खालिद की पारी समाप्त। बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा टेलीकास्ट अब तक आप तक पहुंचा रही है प्रिंस मूवीज, किंग ऑफ टेलीकास्ट। इसके प्रोपराइटर है रवि गुलवी, इस वक्त सिस्टम ऑपरेटर हैं प्रिंस मूवीज की जान मास खान। काफी समय बाद नजर आ रहे हैं, कुछ दिनों से रुखसत थे हमारे बीच में से, अब लौट आए हैं। इस वक्त कुल रन बने हम देखें तो 22 रन, 22 रन्स। अब नए बल्लेबाज इस वक्त ये देखिए उमैर आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 52 रनों की नाबाद पारी खेली थी, नॉट आउट रहे थे, अंत तक आउट नहीं हुए थे। यहाँ तो पूरा टोटल ही 52 रनों का है। इस बार फुल टॉस गेंद, सवाल लेकिन सहमति नहीं, काफी अतिरिक्त उछाल क्या। फुल टॉस गेंद डायरेक्ट पैरों पर लगी थी, काफी ऊपर थी, यही कारण था कि अंपायर ने उसे नकार दिया। जी अगर हम देखें तो थाइस के भी ऊपर गेंद टकराई थी, यही कारण था कि अंपायर ने बिल्कुल सिरे से अपील को नकार दिया। बहुत ही अच्छा डिसीजन ऑफिशियल अंपायर शानू कुरैशी का। इसी बीच अगली गेंद जय की। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे हुक, लेकिन मिस की हुक है और फाइन लेग पर पकड़े गए वहां पर। ये देखिए क्या उमैर आउट होकर रिटर्न जा रहे हैं। जी हाँ, पिछले मैच के हीरो इस मैच में बने हैं 0, शून्य का चश्मा पहनकर पवेलियन लौटते हुए। इस वक्त दूसरा झटका लगा है
जोहानी स्पोर्ट को, और कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी पारी लड़खड़ाती हुई इस वक्त जोहानी स्पोर्ट की। इस वक्त कुल रन बने हैं 23 रन। यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए, 29 रनों की जरूरत है इस वक्त जोहानी स्पोर्ट को। कितने गेंदें बची हैं? 13 बॉल 29 रन। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और टेनिस क्रिकेट में तो 13 गेंदों में 29 रन काफी मर्तबा बनते हैं। लेकिन कल 4 गेंदों में 2 रन नहीं बने थे, जबकि स्ट्राइक पर आर्यन मौजूद थे। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे वहां पर अफान, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया। ये देखिए अब हमसे जुड़ते हुए अशफाक, वेलकम। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल रन बने हैं 24। बची हुई 12 गेंदों में जो रन चाहिए 28। क्या कुछ होगा? कौन करेगा पलटवार? किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? ये सब कुछ आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर संदीप बागुल सर। बारा चेंडूंवर या ठिकाणी 28 धावांची आवश्यकता असणार आहे। खरं तर पाहिलं गेलं आपण तर 12 चेंडूंवर 28 धावा लिमिटेड ओव्हर्स मध्ये हे पाहायला बऱ्याचशा वेळी मिळालेले आहेत आपल्याला, परंतु अजूनही आपण क्रिकेट आहे मित्र, आपण कालच्या दिवसभरात पाहिला 4 चेंडूंवर 2 धावांची आवश्यकता असताना आपण पाहिलं की त्या संघाला त्या 2 धावा करू शकला नाही। परंतु एक आपण पाहाल या ठिकाणी गोलंदाजाजवळ जो अंदाज आहे तो हे करू शकतो, कारण त्याने आतापर्यंत चांगल्यांची भंबेरी उडवलेली आहे। आता मात्र हे डिपेंड करतंय पूर्ण गोलंदाजाच्या वर की कसं तो गोलंदाजी करेल। येणाऱ्या 12 चेंडूंवर 28 धावांची आवश्यकता गोलंदाजीसाठी आहे। तेजस या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी असणार आहे। तेजस वर एक मोठी जबाबदारी आहे, पाहूया तेजस या ठिकाणी कशी गोलंदाजी करेल। यावेळी मात्र तेजसचा पहिला चेंडू मात्र मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात बॅटच्या पट्ट्यात घेऊ शकलेला नाहीये। चेंडू सरळ आहे, 38 सर्कल मध्येच राहतोय, स्वतः यष्टीरक्षक त्या ठिकाणी येतोय आणि एक धाव त्या ठिकाणी घेतली जाते आहे। कुठेतरी जोहान स्पोर्ट्सला हा सामना जिंकायचा असेल तर मोठे फटके खेळणं हे अनिवार्य आहे, कारण की कमीत कमी चेंडूंवर त्यांना जास्तीत जास्त धावा अर्जित करायचे असतील तर मोठे फटके खेळूनच त्या ठिकाणी या धाव्या पटकावल्या जाऊ शकतात। आता पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मार्कवर असणार आहे तेजस आणि स्ट्राइकला फलंदाज असणार आहे ज्याचं नाव आहे रफिक। यावेळी मात्र पुढे येऊन मारलाय, ड्राइव्ह केलेला आहे डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये। पहिली धाव जोरात पूर्ण करतोय, दुसऱ्या धावेसाठी बिलकुलही प्रयत्न केला जाणार नाहीये। या ठिकाणी आपण पाहू शकताय मोठे फटके खेळण्याची संधी देत नाहीये। खरं तर या ठिकाणी आपण पाहू शकाल दोघेही फलंदाज मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतायत, बॅटवर चेंडू त्या ठिकाणी पाहायला मिळत नाही येताना। पुढचे चेंडू, यावेळी मात्र पुन्हा एकदा अतिशय जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन पाहायला मिळतंय। ब्लॉक होल मध्ये चेंडू होता, खरोखरच असा तेजवान जबरदस्त फास्ट चेंडू टाकला गेला, गती होती त्या चेंडू मागे आणि ब्लॉक होल मध्ये चेंडू सहजी आपण पाहतोय सहजासहजी खेळता येत नाहीयेत। यावेळी मात्र फलंदाज होतोय बाद, मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात आपण पाहिलं बॅटची कड लागते, सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात चेंडू जातोय आणि आपण पाहिलं की मोठा फलंदाज त्या ठिकाणी बाद होतोय। अफान या ठिकाणी बाद झालेला आहे, आता त्याची जागा भरून काढण्यासाठी सोनू येणार आहे। अतिशय चांगली गोलंदाजीचं प्रदर्शन पाहायला मिळतंय तेजस कडनं। तेजस जवळ मी मगाशीच म्हटलं की तेजस जवळ तो टप्पा आहे, तेजस जवळ ते नियंत्रण आहे, तेजस जवळ ती लाईन आणि लेंथ करण्याची एक खुबियत आहे आणि खास करून अशा वेळी त्याला गोलंदाजाने आपलं कर्णधाराने त्याला गोलंदाजीसाठी आणलेल्या आक्रमणासाठी ही म्हणजे महत्वाची गोष्ट। कोणत्या वेळेला कोणता चेंडू कोणता गोलंदाज आणायचा हे कर्णधाराला निश्चित माहित असणं गरजेचं आहे, परंतु स्वयंभू पायगावचा कर्णधार यावेळी आपण पाहतोय योग्य वेळी योग्य निर्णय योग्य माणसाला त्या ठिकाणी उभा केलाय, आक्रमणासाठी आणलेला आहे।
पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा तेजस कडला. यावेळी पुन्हा एकदा आपण पाहाल मिड विकेटच्या डोक्यावरनं मारण्याचा प्रयत्न होता, बॅटच्या पट्ट्यात घेऊ शकलेला नाहीये. परंतु जर हा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात आला असता तर निश्चित मिड विकेटला क्लिअर करू शकला असता, कारण का हा चेंडू होता मारण्यालायक परंतु बॅटच्या पट्ट्यात येऊ शकलेला नाहीये. हा चेंडू तेवढा बॅटच्या पट्ट्यात आलेला नाही. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा आपण पाहाल शॉर्ट ऑफ पूल केलेला आहे. स्क्वेअर लेगला खेळाडू त्या ठिकाणी आहे तैनात. एकच धाव मिळेल. आपण पाहताय वारंवार त्या ठिकाणी संघर्ष केला जातोय आणि एक अतिशय महत्वाचं षटक जे की पार पडलं, ज्याच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी होती ती त्यांनी पेलली आणि आपण पाहिलं या ठिकाणी अतिशय सुरेख असं गोलंदाजीचं प्रदर्शन त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. खास करून तेजस आपल्या षटकामध्ये त्याने फक्त 3 धावा खर्च केल्या, एक महत्वाचा गडी बाद केला. धावसंख्या झालेली आहे आता 27 धावा झालेल्या आहेत. येणाऱ्या 6 चेंडूंवर 25 धावांची आवश्यकता. शेवटच्या चेंडू पर्यंत काही सांगू शकत नाहीये, कारण अजूनही जोहान स्पोर्ट्सचे जे खेळाडू आहेत त्यांच्यामध्ये ते काबिलात आहे. आने वाले 6 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है. हालांकि बल्लेबाज जो है उनके पास एक प्रयास कर सकते हैं. अभी भी बल्लेबाज हम अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उनमें अभी भी वो क्षमताएं है, बड़े स्ट्रोक्स खेलने की क्षमताएं अभी भी बल्लेबाज अपने पास रखते हैं. लेकिन अभी गेंदबाजी के लिए यहाँ पर लाया गया है स्वयंभू पायगांव के गेंदबाज जिनका नाम है नितिन को लाया गया है. नितिन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और यहां से देखेंगे आने वाले 6 गेंदों में 25 रन देते हैं कि नहीं. लेकिन कोशिश यहां पर है जोहान स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों की कि 2-3 ऐसे बड़े छक्के लगाए. ये कोशिश जरूर रहेगी. काफी महत्वपूर्ण मैच. आने वाले 6 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता. हो मैंने पहले भी कहा था कि इस बल्लेबाज के पास जो एक अंदाज है, बल्ले के बीचों बीच लिया और छक्का लगाया उन्होंने. 6 रन. जोहान स्पोर्ट्स को हमने पहले भी कहा कि ये बल्लेबाज जो है अगर इनके बल्ले पर गेंद आई तो समझो छक्का लगा. आने वाले 5 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता. हालांकि अभी टेंशन तो जरूर, खतरे की घंटी तो जरूर बजाई है. सोनू के बल्ले से वो एक बड़ा प्रहार उन्होंने किया, 6 रन लगाए. हालांकि यहां से कुछ कहा नहीं जा सकता, सोनू के पास वो एक क्षमताएं है, लेकिन गेंदबाज को यहां पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. खास तौर पर यहां पर विकेट भी चटकाना होगा और कम से कम रन अपने ओवर में खर्च करने होंगे. तो आने वाले 5 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है. हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता. फिर से एक बार सोनू स्ट्राइक पर और गेंदबाजी के लिए यहां पर नितिन अपने गेंदबाजी मार्ग पर. स्ट्राइक पर है सोनू. ये देखिए सोनू का कमाल, हवा में गेंद और ये देखा आपने कमाल सोनू का. क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है सोनू द्वारा. और प्रेशर में जो है बिल्कुल प्रेशर नहीं है, बिल्कुल बिंदास खेल रहे हैं. जरूर इन सारी कठिनाइयों में, परिस्थितियों में कैसे बल्लेबाजी होनी चाहिए ये खास तौर पर सोनू से सीखना चाहिए. बिल्कुल परेशान नहीं है, बिल्कुल प्रेशर को देखिए अच्छी तरह से वहां हैंडल करते हुए. निधास ट्रॉफी में हमने देखा था कार्तिक को, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी बांग्लादेश के अगेंस्ट में, कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी यहां पर सोनू के बल्ले से. आने वाले 4 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता. अगर ऐसे ही 2 छक्के लगाए तो जोहान स्पोर्ट्स से मैच जीत सकता है. लेकिन स्वयंभू पायगांव को यहां से गेंदबाज को जरा शातिर अंदाजे में गेंदबाजी करनी होगी. जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए हैं सोनू ने. सोनू का बल्ला यहां पर सोने जैसा स्ट्रोक खेलता हुआ.
इस बीच देखिए फिर से एक बार हवा, और ये देखिए कोशिश, और ये आउट हो चुके हैं। एक महत्वपूर्ण विकेट यहां पर उन्होंने लिया, खास तौर पर इस कठिन परिस्थिति में जैसे ही थ्रो आई और उन्होंने विकेटों को लगाई, स्टंप को लगाई, और एक महत्वपूर्ण विकेट यहां पर जॉन स्पोर्ट्स का गिरता हुआ। हालांकि इस तरीके यहां पर कोई रन की आवश्यकता नहीं थी, स्ट्राइक को रोटेट किया था, लेकिन आउट हो चुके हैं बल्लेबाज। अभी स्ट्राइक, अभी आएंगे बल्लेबाज, नए बल्लेबाज जिनका नाम है जुनेद, आ चुके हैं अभी बल्लेबाजी के लिए। सोनू जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, खास तौर पर तारीफ जरूर करनी होगी उनकी। उन्होंने 2 छक्के लगाए, बिल्कुल टेंशन में थे गेंदबाज। अभी आने वाले 3 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जो बल्लेबाज है उनके पास एक स्ट्रोक खेलने की काबिलियत। इस बीच हवा में खेला है उन्होंने, फिर से एक बार देखिए, ओहो अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। हालांकि उन्होंने कैच लेने की कोशिश नहीं की, ऐसा लग रहा था कुछ क्षण के लिए कि गेंद उछलेगी, लेकिन गेंद के उछलने के साथ साथ वो भी उछले और हाथ में ली, और एक अच्छा उन्होंने फील्डिंग का प्रदर्शन किया। तो आने वाले अभी भी 2 गेंदों में रनों की आवश्यकता है, 11 रनों की आवश्यकता। और इस बीच देखिए ड्राइव किया, मिड विकेट पर खेल, और इसी के साथ केवल 1 रन। लेकिन तारीफ जरूर करनी होगी यहां पर स्वयंभू पायगांव की टीम के नितिन की। और ये उन्होंने 6 रन, लेकिन कोशिश अच्छी रही जॉन स्पोर्ट्स की, खास तौर पर छक्के लगाए उन्होंने। और हार्ड लक, आपका अच्छा खेल रहा, आपने अच्छा खेला, लेकिन स्वयंभू पायगांव जिन्होंने बेहतरीन रन बनाए, चेस करने के लिए दिए जॉन स्पोर्ट्स के सामने, गेंदबाजी भी बेहतरीन हो चुकी, और इस तरीके से यहां पर स्वयंभू पायगांव इस मैच को उन्होंने जीत लिया है। मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं स्वयंभू पायगांव के, जो रहेंगे पांच बॉल 18 रन का योगदान रहा, जो आपको पता है। आइए चलिए मैन ऑफ द मैच। क्या आप बता सकते हैं मैन ऑफ द मैच कौन हो सकते हैं? स्वयंभू पायगांव, स्वयंभू पायगांव, क्या बता सकते हैं मैन ऑफ द मैच कौन हो सकता है? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। रॉन्ग। भावेश यहां पर आई है, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन रहा, और उनको फिर से एक बार हम मैन ऑफ द मैच। सुनील सिंघे के हाथों से हम यहां पर भावेश को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दे रहे हैं, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा इनका, खास तौर पर अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की, जो कि उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया, 18 रन उन्होंने किए भावेश, और इसी की बदौलत हमने उनको मैन ऑफ द मैच यहां से दिया है। तो चलिए लौट चलते हैं अभी एमजे और अंजुमन के बीच ये जो होने वाला मैच, और शुरुआती ओवर में कमेंट्री बॉक्स में माइक्रोफोन पर आएंगे, जो कि हिंदी की सुरीली आवाज राकीब अंसारी। तो आइए मुकाबला शुरू होने जा रहा है इस वक्त, क्लैश ऑफ टाइटंस, और हमसे इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं अंजुमन स्पोर्ट के 12th मैन आमिर। जब भादवड़ के मैदान पर खेले थे अंजुमन से, तो 1 ओवर में 25 रन लुटाए थे उन्होंने। लगातार छोटी गेंदबाजी कर रहे थे,